Hello friends, in the last class we have done a complete comprehensive practical problem relating to final accounts and the treatment of the disposal of profits or the appropriations from the profits under the head reserve and surplus, and we have done the proposed dividend which is to be shown in the note to accounts under the heading contingent liabilities and commitments. There can be various problems where for disposal of profits also you are given the dividend being proposed, which you don't have to show as an actual liability but as a contingent liability in the note to accounts. The dividend in which year it will be proposed, it will be shown as a contingent liability, and in the next year when it will be paid, it will be shown as appropriations. So just to make this fact much more clearer to you, I am showing you various illustrations where these type of problems are given. In the last illustration which we have done, like full-fledged problem, which was illustration 7, also that was a point. Now I am taking few more illustrations which are dealing with that point only. So it is page 9.60 and illustration 5, right? In illustration 5, what is given? The directors propose to, इसका मतलब dividend is being proposed, the word is propose, or propose to declare final dividend at 10% on revised share capital. इसका मतलब they have a proposal to declare a final dividend at the rate of 10%. Now this will be shown in the problem as proposed dividend, as it is not to be recognized as a liability in the balance sheet as per पैरा 14 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। यहाँ आप डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड को नोट टू अकाउंट्स में सबसे नीचे लेंगे। डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड नेक्स्ट ईयर ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. So this is how you are going to show it in the final accounts as contingent liability in the note to accounts. Now if we come at the next problem, it is 9.64 page, and in that also in illustration 6 they have given a point that additional information transfer to debenture redemption reserve 50,000 and general reserve this. These are the appropriations जो हमने problem last class में reserve and surplus की appropriation की या disposal of profits की हैं relating to that only. आगे क्या कहा गया है? दैट द कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। नाउ यहाँ भी कहीं वर्ड पेड नहीं आ रहा, ये भी वर्ड आ रहा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब कि इट इज़ ऑल्सो अ प्रपोज डिविडेंड, एंड इसे भी हमने यहाँ माइनस कर रिजर्व एंड सरप्लस में डिविडेंड पेड नहीं दिखाना, ये डिविडेंड कहीं पे नहीं किया गया. इट इज़ ऑल्सो अ प्रपोज डिविडेंड, एंड व्हेन इट इज़ प्रपोज्ड अगेन इट विल बी शोन एट द एंड प्रपोज डिविडेंड प्रपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000 रुपये है, 4,40,000 रुपये हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 है. तो 1,00,000 के ऊपर 9% के हिसाब से प्रेफरेंस डिविडेंड प्रपोज्ड है, उसको पे करने के बाद 15% इक्विटी डिविडेंड दिया जाएगा ऑन शेयर कैपिटल. सो बोथ ऑफ देम आर बीइंग शोन एज प्रपोज डिविडेंड इन द नोट टू अकाउंट्स. दे आर नॉट बीइंग शोन एज डिविडेंड पेड, राइट. उसके बाद हमने जो मेन प्रॉब्लम ये वाली की थी इलस्ट्रेशन 7 में इट वाज गिवन द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड फाइनल इक्विटी डिविडेंड एट 20%, और यहाँ हमने जो की थी प्रॉब्लम सॉल्व, उसके अंदर हमने प्रपोज डिविडेंड को एज कंटिजेंट लाइबिलिटी ही शो किया था. नोट टू अकाउंट्स में हमने इसे एज अप्रोप्रिएशन नहीं शो किया था. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट टू बी रिकग्नाइज एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट एज पर पैरा 14 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज. सो 20% ऑन 5 लाख हमने कैलकुलेट किया. तो दिस प्रॉब्लम ऑल्सो वी हैव सीन. इसके बाद इफ़ वी कम टू page number 9.85, yes, this is 9.70 पेज. यहाँ भी क्या दिया गया है कि
the directors have recommended equity dividend at the rate of 8% on paid up capital. अब ये सब कुछ बैलेंस शीट बन जाने के बाद डिविडेंड प्रपोज किए जाते हैं, इसलिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पैरा 14 दिस इज़ अ रिवीजन कि पहले जब डिक्लेयर किया जाता था तभी उसे उसी साल में अप्रोप्रिएट किया हुआ या पे किया हुआ मान लिया जाता था, लेकिन नाउ इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर ईयर. जब ये एक्चुअली पे किया जाएगा तभी हम उसे एज अप्रोप्रिएशन शो करेंगे. तो यहाँ जो इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% ऑन पेड अप कैपिटल पे करना था, हमारी पेड अप कैपिटल यहाँ दे रखा है जैसे 20,000 इन थाउजेंड्स, तो हम 20,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करेंगे, so it will be 1,600. Again, see, it has been shown as proposed dividend proposed to be distributed to equity shareholders in next year, it is 1,600. यानी 20,000 1000 था तो ये भी 1,600 1000 हो गया. This is how it will be shown, not to be recognized in liability in the balance sheet as per para 14 of accounting standard 14. Now if we come to page 9.85, I just want to make this point much more clear in your mind that how it is to be treated. Now in page 9.85, if you see illustration 12, here also they have said the board of directors propose a final dividend at the rate of 8% after transfer to general reserve 30,000 and ignore corporate dividend tax. And a claim of 2,500 for workmen compensation is being disputed by the company. हमने पढ़ा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी में कि द लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट बी पेएबल इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. तो ये भी हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है क्योंकि इसका कोर्ट में केस जो है वो डिस्प्यूट में है. अगर आप जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन that will be your actual liability, otherwise it will be shown as a contingent liability. And the board of directors propose a final dividend at the rate of 8%. तो 8% आप इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 6 लाख है, 6 लाख के ऊपर आप 8% कैलकुलेट करेंगे. सो ये देखिए प्रपोज डिविडेंड टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 8% ऑन 6 लाख, इट विल बी 48,000. और जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. तो दिस इज कमिंग अंडर द हेडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट इन द नोट टू अकाउंट्स, नॉट एज एक्चुअल लाइबिलिटी. उसके बाद अगर आप आते हैं इलस्ट्रेशन 13 पर, इलस्ट्रेशन 13 पर यहाँ पर भी 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017. दिस इज़ ऑल्सो अ प्रपोज डिविडेंड. तो आप 15% कैलकुलेट करेंगे. यहाँ शेयर कैपिटल 4 लाख दी गई है और इस 4 लाख के ऊपर आपने 15% कैलकुलेट करना है और वो 15% is 60,000. So that is also to be shown as a contingent liability. It is not to be recognized as a liability in the balance sheet as per 14 of accounting standard 14. लेकिन इसी प्रॉब्लम में एक बात और दी गई थी और वो क्या थी कि आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया गया था उसमें दिया गया था कि डिविडेंड पेड 2015-16 इंक्लूडिंग, यानी डिविडेंड इज पेड फॉर 2015-16 इंक्लूडिंग corporate dividend tax, and that is 36,000. So this is the dividend which has actually been paid by the company, and this will be shown under the heading reserve and surplus as appropriation. So how you will show that dividend paid 36,000? You will show it under the heading reserve and surplus. जहाँ आप अप्रोप्रिएशंस करते हैं ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, वहाँ डिविडेंड पेड फॉर 2015-16 दिस इज़ यू आर डिडक्टिंग 36,000. सो दिस इज़ द डिविडेंड पेड, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएशन. और जो डिविडेंड प्रपोज किया गया है इट इज़ बीइंग शोन in the note to accounts to the extent of 60,000 but not as actual liability, and it will be shown as a contingent liability. One thing more, you don't have to do the problems relating to managerial commission, calculation of manager's commission. As per guidelines, if you will go through, there they have mentioned that the calculation of managerial commission problems to be avoided. So you need not do the problems for calculation of managerial commission. उसके बाद again if you come to
पेज 9.92 इलस्ट्रेशन 14। इसके अंदर फिर से ये पॉइंट आ रहा है दैट द कंपनी प्रपोज्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल इन 2015-16 विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग 2016-17। और ये हमारा जो फिनेंशियल ईयर है जिसका ये ट्रायल बैलेंस है वो 2016-17 का है। इसका मतलब 2015-16 में ये प्रपोज़ किया गया था और ये 2016-17 का साल है, तो इसके अंदर वो पे किया गया होगा। तो यहाँ हमने उसे एज पेड शो किया है। You can have a look under the heading Reserve and Surplus available for appropriations. Dividend paid is 10% on 18 lakh and corporate dividend tax on that is calculated at the rate of 20.36% on dividend. पहले शेयर कैपिटल का 10% आपने डिविडेंड कैलकुलेट किया 1,80,000 और उस 1,80,000 पर यू विल अप्लाई द रेट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स विच इज़ 20.36% विच कम्स टू 36,648. This is the corporate dividend, and both these items you are showing by way of appropriation under the heading reserve and surplus. So now you must have अंडरस्टूड जहाँ ये दिया जा रहा है कि डिविडेंड प्रपोज किया जा रहा है वहाँ आप उसे एज एप्रोप्रिएशन नहीं शो करते अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, उसे आप एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं। और जहाँ ये दिया जाता है कि लास्ट ईयर वो प्रपोज किया गया था और इस साल पे किया गया है वहाँ आप उसे एप्रोप्रिएशन की तरह घटाते हैं। अगेन इस इलस्ट्रेशन 15 यहाँ दिया गया है ये प्रपोज डिविडेंड हेडिंग। यहाँ आपको शेयर कैपिटल दी गई है 20 लाख रुपए की और फिर लेटर सी कि इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है। डिविडेंड proposed in 2015-16 had been declared and paid during 2016-17 at proposed rate of 20% and corporate dividend tax at 20.36%. Now again this trial balance is for the year ending 31st March 2017. इसका मतलब यहाँ जो दिया गया है proposed dividend इन 2015-16 हैड बिन डिक्लेयर्ड, यानी पिछले साल वो डिक्लेयर किया गया था लेकिन ये 16-17 में वो पे किया गया है एट प्रपोज रेट ऑफ 20%। तो अब हम 20% के हिसाब से इस साल में पे करेंगे। और यहाँ पर देखो अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ इसे डिविडेंड प्रपोज लास्ट ईयर नाउ पेड 4 लाख और उसके ऊपर हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी 20.36% जो दे रखा है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसे रिजर्व एंड सरप्लस में घटा कर दिखा रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर क्योंकि ये डिविडेंड पे किया गया है तो इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्योंकि ये डिविडेंड पे किया गया है तो कैश में से भी ये माइनस हो रहा है और ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी माइनस हो रहा है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो डिविडेंड इस साल प्रपोज़ किया जा रहा है या जो पिछले साल प्रपोज़ किया गया था वो इस साल पे किया जा रहा है। जैसे यहाँ भी ये वर्ड है इलस्ट्रेशन 16 में टू प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर करंट ईयर, टू प्रपोज फाइनल डिविडेंड, तो ये भी प्रपोज डिविडेंड की तरह नोट टू अकाउंट्स में शो किए जाएंगे, एप्रोप्रिएशंस की तरह नहीं शो किए जाएंगे। इसके बाद इफ़ आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट, इस पॉइंट पर आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए अब तक कि जहाँ भी ये प्रपोज दिया जाएगा वहाँ उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये देखो इलस्ट्रेशन 18 में अगेन ये बात दी गई है, डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 22% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। तो जो बोनस शेयर्स इशू करने की है उसकी तो हम एंट्री कर रहे हैं लेकिन जो डिविडेंड प्रपोज करने की है उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ नोट टू अकाउंट्स में हम शो करेंगे। दिस इज़ रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 18। सो नाउ if you will go through your illustrations and their solutions in the book, you should understand the treatment of proposed dividend. Now illustration 21 हमने जो लास्ट क्लास में की थी, लास्ट उसमें की थी सेशन में, उसमें क्या था इलस्ट्रेशन 21 में यहाँ देखो ये वर्ड है द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर पास्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी to pay dividend on preference shares, to pay a final dividend of 5% on equity shares। इसलिए जब हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था तो हमने इसे एज एप्रोप्रिएशन शो किया था। हमने उसे करंट ईयर के प्रॉफिट और
ओपनिंग बैलेंस जो था उससे जो टोटल मिला था सरप्लस का, उसमें से हमने जहाँ एप्रोप्रिएशन शो किए थे वहाँ ट्रांसफ़र टू रिज़र्व के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हमने क्योंकि पे कर दिया है तो उसे माइनस किया था, इंटरिम डिविडेंड को भी माइनस किया था, फाइनल डिविडेंड को भी माइनस किया था और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को भी माइनस किया था ऑन ऑल दीज, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड पर, इंटरिम डिविडेंड पर, फाइनल डिविडेंड पर, सब पर हमने ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना है। तो ये हमने इसलिए किया था क्योंकि इस प्रॉब्लम में द वर्डिंग्स वर टू पे द डिविडेंड, टू पे अ फाइनल डिविडेंड एंड नॉट टू प्रपोज। अगर ये प्रपोज वर्ड होता तो हम उसे प्रपोज डिविडेंड की तरह ही शो करते। अब हम ये इलस्ट्रेशन 23 जो मैंने आपको अभी पहले एक सॉल्यूशन भेजा था उसके अंदर आई थिंक आई वॉज मिस्टेकन बिकॉज अगेन there is a word that it was decided that the following decisions be carried out. And what were the decisions? Provision for taxation, dividend equalization reserve, dividend on 12% preference shares. तो ये dividend on preference shares is also to be provided, right? It was decided that the following decisions be carried out. यानी you have to provide for the dividend, provide for और provision create करना है, propose करना है. So it is not dividend paid. So we have not to show it as appropriations. आपको उसमें सॉल्यूशन में करेक्शन करनी चाहिए, जो रिजर्व जो बुक में दिया गया है वो ठीक है तो, लेकिन उसमें उन्होंने प्रपोज डिविडेंड लिखा नहीं है, विच यू हैव टू ऐड। तो नोट टू अकाउंट्स के अंदर आप जो पहले मैंने अभी सॉल्यूशन भेजा था उसमें ये करेक्शन करोगे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में ये अमाउंट ट्रांसफ़र, जनरल रिजर्व में, तो ये इनके बैलेंसेस हो गए। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये था, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, दिस वाज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस वाज अ टैक्स, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 2,80,000। हमने ओपनिंग बैलेंस में ये 2,80,000 जोड़ा तो 3,30,000 आया। उसके बाद जो हमने अप्रोप्रिएशंस किए वो वही हैं, ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफ़र टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, इन सब का टोटल 1,55,000 आया। तो हमने ये सरप्लस 3,30,000 जो थी उसमें से 1,55,000 घटाया तो हमारे पास आएगा 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 आया। कैसे? हमने 3,30,000 में से 1,55,000 घटाया तो 1,75,000 हमारे पास आफ्टर अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट आए, सरप्लस का बैलेंस आया। तो सरप्लस का बैलेंस 1,75,000 है और रिजर्व्स का बैलेंस 1,55,000 है। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस मिलाकर हमारे 3,30,000 होंगे, विच विल बी शोन इन द मेन बैलेंस शीट, balance carried down from reserve and surplus in the note to accounts. This is how it is going to appear in the note to accounts. And this note to accounts के अंदर आप proposed preference dividend at the rate of 12% on 2,50,000 शो करेंगे, proposed equity dividend at the rate of 15% on 4 lakh शो करेंगे. This is illustration 23. एंड प्रपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी होगा, क्योंकि जब आप इतना इतना डिविडेंड प्रपोज करेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर प्रपोज ये भी है कि हम इसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करेंगे। तो दैट यू कैन ऑल्सो टेक एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, बिकॉज वंस यू आर प्रपोजिंग द डिविडेंड इट मीन्स इन द कंटेंजेंट लाइबिलिटी द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स विल ऑल्सो कम, एंड दिस यू विल शो अंडर द हेडिंग contingent liabilities and commitment. So I think this is all regarding the final accounts which I wanted to tell you. You should go through. You need not do very lengthy problems, because in the examination for solving one problem you don't have much time, so very lengthy problems will not come. In the guidelines it is already given that you have to give main emphasis on the preparation of balance sheet, which is part 1 of the final accounts, and for part 2, that is for the preparation of profit and loss accounts, you only have to give an overview. So you need not go in detail in solving the problems of profit and loss account. उसके अलावा they have given that the number of adjustments which will be there, they are also restricted. So you need not go through very lengthy and very complicated problems. You must only understand the concept of final accounts when the trial balance is given, how the main balance sheet is prepared, how note to accounts are prepared, and how mainly this proposed dividend and dividend paid is to be treated.
when dividend will be paid, then only it is to be shown as appropriation under the head reserve and surplus. When it will be proposed, then only it is to be shown as contingent liabilities and commitments. That is all regarding the financial statements of the companies. You can go through various other illustrations from the book, and if there is any problem, then you can ask. So this is all regarding financial statements topic.